Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being a Sunday, we'll also be taking calls from your listeners on mutual fund and related issues. You can call us on our direct numbers 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. Our direct numbers once again are 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. And please dial 011 as the STD code before these numbers. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम ताजा आर्थिक खबरें आप तक लाएंगे। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में सीधे शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 23314444, 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में आज आमंत्रित है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और अब शुरुआत में हेडलाइंस के साथ है अर्जुन चौधरी। Investors of 6 shuttered Franklin Templeton mutual fund schemes to get another 3,303 crore rupees next week. Foreign investors pull out over 2,000 crore rupees from the Indian equities market so far in the month of July, and global crude oil prices fall nearly 3% this week. फ्रैंकलिन टेम्पल्टन की 6 बंद म्यूचुअल फंड योजनाओं के निवेशकों को अगले सप्ताह 3,303 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि वितरित की जाएगी। विदेशी निवेशकों ने अब तक जुलाई में भारतीय शेयर बाजारों से 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बाहर निकाली और कच्चे तेल के वैश्विक मूल्य इस सप्ताह लगभग 3% की गिरावट में रहे। In our top story, unit holders of Franklin Templeton Mutual Fund 6 shuttered schemes will get another 3,303 crore rupees next week in its 5th tranche. SBI Funds Management would distribute the next tranche of 3,303 crore rupees to unit holders across all 6 schemes. The payment to all investors whose accounts are KYC compliant with all details available will be made during the week of July 12, Franklin Templeton Mutual Fund said. With this, the total disbursement will reach 21,080 crore rupees, amounting to 84% of assets under management as on April 23, 2020, the company said. Under the first disbursement, investors received 9,122 crore rupees in February, while 2,962 crore rupees are paid to investors in the month of April. 2,489 crore rupees are disbursed in May and 3,205 crore rupees in June. Once again, a warm welcome to you, Dhirendra. We have a waiting caller, but do tell us something about this compensation that is being given to unit holders. So what is the role of SBI Funds Management? Is it the role of a trustee? And how is this reimbursement working out for investors? No, SBI is not a trustee. What happened was last March, in March 2020, these 6 funds were actually frozen by Franklin Templeton because they were facing a big crisis of liquidity for a brief period. And as a result of which, they said that these funds will be wound up. And till they will be wound up and for a methodical winding up, they needed time. Meanwhile, what happened was, a lot of investors went to the court. And the court took its own time. First it went to the Karnataka High Court and from there to Supreme Court. And it has been, it was, a go-ahead was given that, okay, it will undergo a methodical winding up. But at the same time, the Supreme Court order also said that, during the winding up, the SBI Mutual Fund was entrusted the job of selling the assets owned by this fund and giving the money back to the, so they are supposed to be the processing mutual fund, which will be selling the securities and giving back the money to the investors.
keeping it independent of Franklin Templeton. So that is what is happening, and as a result of all this, though there was a delay on account of the initial litigation, but now I find that, things are happening at a great speed, and it has happened at a great speed, and it has happened without any loss to investors, because Franklin Templeton Fund have not witnessed any decline in value or any write-off on account of their investments. So every rupee of money in those securities have worked out nicely so far. And the other is that, as a result of today, this week's tranche of, giving back the money, the total aggregate will amount to about 85%, which I think is, of the 100 rupees which was in March 2020, 85 rupees plus appreciation would have gone back to investors. तो सभी निवेशकों के लिए राहत की बात है। अब हम स्वागत करेंगे आज के पहले कॉलर गुरुनाथ जी का, जो महाराष्ट्र से हमें फोन कर रहे हैं। आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार मैडम, मेरा सवाल है, अभी जो पेंडेमिक की वजह से जो अपनी इकोनॉमी समझो स्लो चल रही है। गुरुनाथ जी, आपकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं आ रही है। सर, ये जो अपना ये जो पेंडेमिक की वजह से अपना इकोनॉमी थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है, और कंपनियों में भी जो कामकाज इतना फुलफिल से नहीं हो रहा है, तो ऐसे में ये म्यूचुअल फंडों में इन्वेस्ट करना कितना उचित होगा? और मेरा दूसरा सवाल है सर, ये जो सेंसेक्स और सेंसेक्स के बारे में रोज का अपडेट दिया जाता है कि इतना ऊपर गए उतना नीचे गए, सर ये म्यूचुअल फंड के बारे में क्यों नहीं बताते हैं कि इतना इन्वेस्ट हुआ इसमें? ये थैंक यू सर। जी धीरेन्द्र जी। जी हाँ, पैंडेमिक के बारे में ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि हमारा इकोनॉमी तो इसका बड़ा नेगेटिव असर होगा, और हुआ भी होगा और हुआ है, लेकिन बाजार पे इसका असर नहीं हुआ है। लोगों को ये लगा कि ये एक टेम्पररी फिनोमिनन है, शायद हमारे आर्थिक इसका जो असर होना चाहिए था वैसा नेगेटिव असर नहीं दिखा है। बाजार पे बहुत चीजों का असर होता है, उसमें एक बड़ा रोल होता है। अभी अगर आप देखें कि बाजार में पॉजिटिव क्या क्या है और नेगेटिव क्या क्या है, तो बहुत सारे बहुत लंबा लिस्ट है पॉजिटिव चीजों का। पॉजिटिव ये है कि बाजार कंपनियों की अर्निंग गिरी हुई है और यहाँ से अर्निंग काफी रफ्तार से बढ़ सकती है। ब्याज दरें काफी कम है। बैंकिंग इंडस्ट्री जो कि हमारे देश का पिछले 10 साल में करीब केवल समस्याओं से जूझ रहा था, अपने एनपीए से स्ट्रगल कर रहा था, उनमें एक बड़ा बदलाव हुआ है। वो राइट ऑफ करते करते एक ऐसी स्थिति पे आप आ गए हैं जहां पे वो लोन देने में सक्षम है, लेकिन हाँ अभी लोन लेने वाला कोई नहीं है, और ब्याज दरें कम हो गई हैं, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छा माना जाता है कि लोग रिस्क लेने में को तैयार होंगे। और अगर नेगेटिव देखा जाए तो नेगेटिव तो है ही है, क्योंकि कारोबार बहुत दिन से बंद है। 1.5-2 साल की आमदनी तो बहुत सारे कंपनियों की डूब गई है। कुछ कंपनियों की इसका बहुत ज्यादा असर हुआ है, कुछ कंपनियों पे कम असर हुआ है। रोजगार पे जो कंजम्पशन लेड जो हमारा इकोनॉमी है उस पर इसका सीधा असर पड़ेगा। तो बहुत सारे पॉजिटिव है, बहुत सारे नेगेटिव है, लेकिन एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज जो कि पॉजिटिव है कि विदेशी निवेशकों का पैसा लगातार आ रहा है और भारतीय निवेशकों का भी पैसा बाजार से निकला नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अगर बाजार में लगातार लोग खरीदते रहे तो बाजार इस वजह से हमेशा ही बढ़ता रहा है या संभला रहा है या गिरा नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि बाजार गिरना चाहिए क्योंकि उम्मीद है कि सब चीज अच्छा नहीं होगा, लेकिन बाजार का डायनामिक वो ऑन बैलेंस फेवरेबल लगता है। और जो आपका दूसरा सवाल था कि सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में आपको पता चलता है और म्यूचुअल फंड पे का क्या असर होता है। हाँ, सेंसेक्स और निफ्टी बड़ी कंपनियों का एक बैरोमीटर है और ये आपको एक बहुत ही नक्शल में बता पाता है कि बाजार बढ़ा कि गिरा, और इसका असर म्यूचुअल फंड पे भी होता है। अगर बाजार बढ़ा तो म्यूचुअल फंड के वैल्यू भी बढ़ते हैं, क्योंकि एवरेज म्यूचुअल फंड का 40-50-60% तो लार्ज कैप स्टॉक्स में ही, बड़ी कंपनियों के शेयर में ही पैसा लगा हुआ है, तो उसका असर दिखता है। लेकिन म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो है वो काफी ज्यादा विस्तृत है, वो काफी ज्यादा डाइवर्स है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और म्यूचुअल फंड का अगर आप पोर्टफोलियो देखें तो आज के दिन उसका जो यूनिवर्स है म्यूचुअल फंड की सारी कंपनियों का करीब 700-800 कंपनियों का होगा, और उसमें अगर आप 80% कॉन्सेंट्रेशन देखें तो लार्ज कैप और मिड कैप भारत की 250-300 बड़ी कंपनी में करीब 70-80% पैसा लगा होगा। तो इनका असर दिखता है और वो बाजार और म्यूचुअल फंड के एनएवीज में भी रिफ्लेक्ट होता है। Next caller is Nihal from Begusarai. Nihal ji, a warm welcome to you. सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरा एक बेसिक सा सवाल है कि सर
हम एक अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे आइडेंटिफाई करें? ये सबसे बेसिक सा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। अच्छा फंड कैसे चुने? दो तरीका है। अगर एक अच्छा, सबसे पहले तो अच्छा फंड चुनने के बजाय आप ये देखें कि आपके लिए सबसे उचित फंड कौन सा है। अगर आप एक बहुत अच्छा फंड आपने चुन लिया और अगर वो आपके लिए उचित फंड, उचित तरह का फंड नहीं है, कि अगर आपका कुछ दिनों का पैसा है और आपने एक बहुत अच्छा इक्विटी फंड चुन लिया, तो वो आपके लिए अनुचित होगा और वहां पे आपको निराशा होगी। तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड चुनने के बजाय आप ये देखिए कि आपके लिए बेस्ट तरीके का फंड कौन सा है। टैक्स सेविंग बचाना है, टैक्स बचाना है और ज्यादा रिटर्न चाहिए तो टैक्स सेविंग फंड में लगाइए। आप पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो और बाजार के में पैसा लगाने का आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है या बाजार के उतार चढ़ाव से आप बिल्कुल भी परिचित नहीं है, तो ऐसे लोगों को हमेशा एक कंजर्वेटिव व्हीकल का चुनाव करना चाहिए। एक पहले जिन्हें बैलेंस फंड कहा जाता था, आज उन्हें अग्रेसिव हाइब्रिड फंड कहा जाता है, वहां से शुरुआत करनी चाहिए किसी आम निवेशक को। तो एक बार जब आपने ये कर लिया कि लंबे समय का पैसा आपको इक्विटी में लगाना चाहिए या उस तरह के फंड में लगाना चाहिए, पहले कैटेगरी चुनिए और उसके बाद बात आती है कि अच्छा इक्विटी फंड या अच्छा डेट फंड कैसे चुने। 3-4 साल के अंदर अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको डेट के अलावा कहीं नहीं लगाना चाहिए, और 5 साल तक कुछ पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी और 5 साल से ज्यादा समय के लिए लगाना है, तभी आप इक्विटी में निवेश करें। डेट फंड चुनने के लिए आपको 2 चीज देखना चाहिए। एक तो कि आपके लिए उसमें डेट में कौन सा, कुछ दिनों का पैसा है, कुछ महीने का पैसा है, कुछ साल का पैसा है, उसके हिसाब से उस कैटेगरी को चुनिए। और उसमें 2 एक्सिस पे आप डेट फंड को इवेलुएट करते हैं। उसका पोर्टफोलियो किस तरह के बॉन्ड्स में लगा हुआ है, अच्छा, खराब या एवरेज तरीके का। और ये आपको वैल्यू रिसर्च के साइट पे, फंड के फैक्ट शीट में, और इस महीने से सेबी ने एक कानून भी बनाया है कि 9 बॉक्सेस का एक मैट्रिक्स आपको हर एक डेट फंड पे दिखेगा कि वो फंड किस में फिट होता है। यहाँ पे 2 एक्सिस पे आपको बताया जाएगा कि ये फंड क्या है, ये फंड क्या करेगा। और ये 2 एक्सिस है कि इसका रेटिंग के आधार पे क्रेडिट, इसका क्वालिटी कैसा है, कितनी मजबूत कंपनियों में ये पैसा लगाएगा, और दूसरा कि इसका इंटरेस्ट रेट का सेंसिटिविटी क्या होगा, ये कितने समय के बॉन्ड्स में, कितने लंबे अवधि के बॉन्ड्स में पैसा लगाएगा। लंबी अवधि के बॉन्ड थोड़ा बहुत ब्याज दरों में बदलाव होने पे यहाँ पे भारी बदलाव देखा जाता है। कम अवधि के जो बॉन्ड्स होते हैं वहां पे इसका असर कम दिखता है इंटरेस्ट रेट बदलने से। तो ये देख करके आप बारीकी से समझ सकते हैं कि ये डेट फंड कितना खतरनाक है। या तो यहाँ पे खतरनाक है, यहाँ पे या तो कमजोर तरीके के बॉन्ड्स हैं, या फिर लंबे मैच्योरिटी का बॉन्ड्स होगा जहाँ पे भारी उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये फंड कैसा है। दूसरा, इक्विटी को बिल्कुल दूसरे नजरिए से देखना होता है कि ये जो फंड है, और उसको अगर केवल आप पोर्टफोलियो और बाकी कोई डिटेल एनालिसिस में गए बिना अगर आप देखते हैं, तो मुझे लगता है कि 3 चीज आपको देखना चाहिए। एक तो कि लंबे समय में, और लंबे समय मतलब 4-5 साल की अवधि में इस फंड का प्रदर्शन कैसा रहा है, और 4-5 अवधि में आपके पास कम से कम 2 ऐसा पीरियड आ जाएगा जिस समय बाजार गिर रहा होगा या बाजार चढ़ रहा होगा, उस समय ये फंड उस फंड ने कैसा किया। तो गिरते बाजार में अगर फंड थोड़ा कम गिरता है और चढ़ते बाजार में थोड़ा सा ज्यादा चढ़ता है, तो ये एक अच्छे फंड की निशानी है। दूसरा कि आप देखें कि ये फंड मैनेजर जो इस पूरे चीज के लिए जिम्मेवार है वो अभी भी है। फंड मैनेजर बदले तो आप फंड के बारे में चिंता कीजिए। और तीसरा चीज जो कि आपको कैसे चुनना चाहिए, इसके बजाय कैसे नहीं चुनना चाहिए, वो ये है कि अधिकतर निवेशकों का एक बहुत बड़ा शौक है कि हर एक आदमी हाल फिलहाल कौन सा फंड अच्छा किया है और उसका वो पीछा करते हैं और उसी में पैसा लगाते हैं। ये आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। ये आपके लिए इसके वजह से आप अधिकतर लोगों को नुकसान होता है और इस नुकसान से बचना चाहिए। कम समय के अच्छे प्रदर्शन के आधार पे आपको फंड में पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो जो जानकारी आपने दी निहाल जी के लिए नहीं, आई एम श्योर हमारे सभी श्रोताओं के लिए बहुत बहुमूल्य रही होगी। अगले कॉलर है जयप्रकाश जबलपुर से। जयप्रकाश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछें। नमस्कार धीरेन्द्र जी। नमस्कार सोनू मैडम। नमस्कार जी। मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैं ऑनलाइन मतलब म्यूचुअल फंड मैंने परचेज करता हूँ, SIP लेता हूँ मैं, तो
इसमें मैम एक मतलब मैंने आप ही के प्रोग्राम के माध्यम से ही देखा सीखा, फिर थोड़ा पढ़ा लिखा हूँ तो मैंने देख दाख के अपना ऑनलाइन मैंने इसको करना सीख लिया और मैं SIP मैंने कुछ चालू कर रखी है। उसमें माई कैंप्स में मेरा एक अकाउंट है और उसमें HDFC का एक म्यूचुअल फंड है जिसमें हमने कुछ एक ट्रांजैक्शन ऐसा है। हेलो जी बोलिए। जी मैम, एक ट्रांजैक्शन उसमें ऐसा है जिसका अकाउंटल मेरे खाते में नहीं दिखाता है। वो मतलब देयर इज अ वन ट्रांजैक्शन ऑफ 5,000 रुपीज जो मेरे अकाउंट से तो डेबिट हुआ है, लेकिन जो मेरा SIP का स्टेटमेंट आता है, मंथली आता है और भी निकाल सकते हैं, तो उसमें दिखाता नहीं है। तो उन्होंने मैंने उसके कस्टमर केयर में जाके कंप्लेंट की थी, तो उसमें उन्होंने एक टिकट नंबर प्रोवाइड करते हैं ये लोग कि योर टिकट नंबर फॉर योर कंप्लेंट ऐसा करके देते हैं। बट वो उसका रिमाइंडर कई बार जा चुका, तो समझ नहीं आता कि आगे कैसे प्रोसेस करें, उधर से जवाब नहीं आ रहा ऑनलाइन में। आप केवल अपने बैंक अकाउंट का वो जो अगर आपके पास अकाउंट है, आप कोई ऐप यूज करते हैं या अगर आप ऑनलाइन बैंक अकाउंट एक्सेस करते हैं, तो बस उसका एक स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट स्क्रीन करके और उस इमेज को आप कैम्प पे भेजें, क्योंकि ये कैम्प ही उनका रजिस्ट्रार है और नहीं तो ये पैसा लॉस नहीं, आप लूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके बैंक से पैसा अगर डेबिट हुआ है तो ये कहीं ना कहीं गया होगा, और जब आपके बैंक से पैसा डेबिट होता है तो ये कहीं ना कहीं डॉर्मेंट अकाउंट में पड़ा होगा। अब आपको केवल ये करना है कि ये पीछा करके आपको इंसिस्ट करना है कि वो पैसा, एक तो आप इनसे शिकायत करें और ये तुरंत इसका समाधान वो निकाल पाएंगे, क्योंकि ये पैसा हवा में नहीं जा सकता है। म्यूचुअल फंड का जो स्ट्रक्चर है, जो डिजाइन है, उसमें ये पैसा आपके खाते से निकल करके किसी और के पास नहीं जा सकता, ये सीधा फंड के अकाउंट में ही जाता है। जब भी आप किसी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो HDFC के जो भी फंड का नाम है, अलग अलग फंड का अलग अलग अकाउंट है और उसमें ही जा सकता है। तो और दूसरा चीज कि अगर यहाँ पे आपको समाधान नहीं मिलता है तो सेबी का एक ऑनलाइन रिड्रेसल सिस्टम है, वहां पे तुरंत जाकर के इसकी शिकायत करें और ये ब्यौरा देते हुए कि आपने इतने तारीख को लिखा, इतने तारीख को लिखा, इतने तारीख को लिखा और इसका समाधान नहीं हुआ है, तुरंत मुझे लगता है उस पर कार्रवाई होगी। ये बहुत ही इफेक्टिव सिस्टम साबित हुआ है। Next caller is Harish from Faridabad. Warm welcome to you on the program, Harish जी. सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, धीरेन्द्र सर को भी नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था, मैंने ना मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक फंड में मैंने इन्वेस्ट किया, ठीक है। मेरा एक थोड़ी सी छोटी सी परिस्थिति है कि अगर मान लो ये पैसा कन्वर्ट होकर डॉलर में जाएगा, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जा रहा है पैसा, ठीक है, वहां से अगर मान लो, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, आज से 4-5 साल बाद ये पैसा डॉलर कम हो जाता है, मतलब रेट कम हो जाता है डॉलर का, जैसे 75 पे चल रहा है एग्जाम्पल मानो आज का, तो कल की डेट में ये 60-70 के बीच में घूमने लग गया, तो उसका हमें नुकसान होगा या थोड़ा उसके बारे में थोड़ा जानना है सर। जी हाँ, इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि आप जब नैस्डैक, तो आज आपका अगर आपने 100 रुपया नैस्डैक फंड में लगाया तो आज आपके 100 रुपए को डॉलर में कन्वर्ट करके, जो कि 70 रुपए के 75 रुपए के हिसाब से उसको कन्वर्ट करके उसमें निवेश हो जाएगा। और अगर आप कल वहां से अगर उसी पैसे को $1.25 को आप ले आते हैं, तो जब आपने भेजा था तब ये 75 रुपए गया, और जब आप वापस लाए अगर वो 60 रुपया हो जाता है तो आपको 60 रुपए मिलेगा, क्योंकि डॉलर का उस समय बदलाव का रेट ये है। लेकिन अगर आप 5 साल, किसी भी 5 साल की अवधि में देखेंगे तो रुपया डिप्रिशिएट किया है, ना कि अप्रिशिएट किया है। अगर आप, मुझे ध्यान है कि मैं जब बहुत छोटा था और एक हमारे मेरे परिवार के एक व्यक्ति विदेश गए हुए थे, और वो जब विदेश से वापस आए तो जो डॉलर लेके आए थे, और मेरे बहुत बचपन का मुझे याद है कि उस समय डॉलर 8 रुपए का था। आज से 10 साल पहले करीब 35 रुपए का था, जब इन्फोसिस $1 बिलियन का रेवेन्यू की कंपनी हुई। तो अगर आप ये ब्रॉड माइलस्टोन, अगर आप 5-5 साल पे अगर आप डॉलर का रेट देखेंगे तो रुपया केवल डिप्रिशिएट किया, और इसकी मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल तक का मुझे अंदाज है कि रुपया केवल डिप्रिशिएट ही करता रहेगा। और ये एक बहुत ही खास फायदा है भारतीय निवेशकों के लिए। ये इसलिए डिप्रिशिएट करेगा कि जब तक जो हमारे इकोनॉमी में ब्याज दर एक ज्यादा है, अमेरिका में अगर आपके पास पैसा हो और वहां पे आपका पैसा पड़ा रहे तो वहां पे केवल आपको 1% या 1.25% रिटर्न मिलता है। हमारे यहाँ अगर आपके पास पैसा हो और बैंक में बिना किसी
बिना किसी जोखिम के अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको 5-6% मिलता है। तो उस 5-6% ये जो डिफरेंस है कि रिस्क फ्री रिटर्न कहाँ पे क्या मिल रहा है, उसके वजह से हमारा रुपया डिप्रिशिएट करता है। जिस समय हमारे यहाँ की ब्याज दरें उतनी कम हो जाएंगी जितना कि अमेरिका में है, तब हम बराबरी पे आ जाएंगे, तब यहाँ पे रुपया डिप्रिशिएट या अप्रिशिएट नहीं करेगा। और ये पूरे अधिक आमतौर पे अब वो एक दूसरा यार्डस्टिक है, ये हमारे ट्रेड बैलेंसेस पे डिपेंड करता है। और मुझे उम्मीद है कि अगले 5-10 साल 15 साल तक हमारा रुपया डिप्रिशिएट करता रहेगा। ये एक दिन में ना करे, एक साल में ना करे, 3 महीने में ना करे, लेकिन 4-5 2-3 साल के अवधि में ये हमेशा डिप्रिशिएट करता है। आइए चले मुंबई, जहां से वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए। Good evening, Virender ji and whole Market Mantra team. I am calling from Mumbai. My name is Virender. सवाल पूछिए। My question is basically for Mr. Virender. Last year in the month of September, SEBI introduced multi-cap, not introduced basically, they mandated that multi-cap funds needs to have allocation 25% to each large cap, small cap and mid cap, and after that they further introduced flexi cap. Yes. So I just want to know the difference between these two categories and which is the better category to opt for. Thank you. Okay. Yes, SEBI made a rule that multi-cap, there was multi-cap was something which we used to say that here is a broad spectrum, here is a diversified category, multi-cap fund which invests large cap, mid cap, small cap, all kind of stocks. And fund managers were at liberty to invest the way they wanted to, and also tilt the portfolio at different points. SEBI made a rule that they must invest at least 25% into small cap and 25% into mid cap, which turned out to be a very faulty thing, because if we look at the capitalization if we do the sum total of the capitalization of all the companies listed in the country and traded in the market, then the large cap account for about 70% of the capitalization. Large cap companies, and that aggregates to about 70-80%, 75%. Next 20% makes up the mid cap, and the bottom 10% is actually the small cap. But by making it 25% mandatory for small cap and mid cap, basically that rule was saying that you have to invest more in small caps and mid caps. And many of the large funds were not configured to actually invest that money easily. If they would have invested that money to comply with the deadline or the rules of the SEBI, then it would have led to a very artificial, regulator-driven, forced investment into such things. So this problem was flagged by the fund companies after the rule was made. So that is why the SEBI created the rule, the new category, which became and that is how the flexi cap fund got created. These flexi cap funds can invest anywhere, large cap, mid cap, small cap, and at the discretion of the fund manager. And all the erstwhile funds which were in the multi-cap category, which were not willing to, or they thought that it is not wise to be, or they wanted to retain the freedom of investing anywhere they wanted to, they changed their category. They changed their mandate from being in they chose to move their fund into the flexi cap category. So that is the difference between the flexi cap and the multi-cap. Multi-cap must have 25% into small cap and mid cap. Flexi cap can be investing anywhere, and the big funds were constrained to be following the multi-cap category. They moved there anyway. Next caller is Bharat from Mumbai. Bharat ji, a warm welcome. Please ask your question quickly. Good evening to all of you, sir. Good evening. मेरा एक क्वेश्चन है, कोटक गोल्ड म्यूचुअल फंड पे मैंने बहुत बरस से इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसमें, पर उससे अच्छा कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, तो अभी उसमें क्या कर सकते हैं? भरत जी, इट्स रिक्वेस्टेड कि आप वॉल्यूम ये रेडियो सेट की वॉल्यूम धीमी कर दें व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन। और वो कोटक का कौन सा फंड है अर्जुन, आपको सुनाई पड़ा? भरत जी एक बार बताएंगे कोटक का कौन सा फंड है आपका? कोटक गोल्ड फंड है। गोल्ड फंड, अच्छा। कोटक गोल्ड फंड हो या कोई भी गोल्ड फंड हो,
गोल्ड फंड उतना ही अच्छा करता है जितना अच्छा गोल्ड का प्रदर्शन होता है। आपने किस समय पैसा लगाया था और उसके बाद से क्या सोने का दाम बढ़ा है। अगर आपने जब लगाया था और उसके बाद सोने का दाम बढ़ा है तो यहाँ पे उतना ही रिटर्न मिला होगा, खर्चा काट के वो करीब आधा से 1% के बीच में करीब बैठता है। तो ये पूरी तरह निर्भर करता है, आपके फंड का प्रदर्शन वैसा ही होगा। और मुझे लगता है कि गोल्ड में पैसा लगाना लंबे समय के लिए एक अच्छा निवेश की सलाह नहीं है। लेकिन आपने पता नहीं कब लगाया था, लेकिन अगर आपने 3 साल पहले अगर किसी गोल्ड फंड में पैसा लगाया होता तो वहां पे आपको काफी अच्छा रिटर्न आज के दिन बैठता है, 15.5%। लेकिन पिछले 1 साल में, 1 साल पहले लोग जब घबरा के काफी गोल्ड में पैसा लगा रहे थे, वहां से आज तक देखा जाए तो वहां पे किसी को कोई फायदा नहीं हुआ है। ये करीब 4% कम है। और पिछले 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में सोने पे रिटर्न कोई खास नहीं है। 6 से 7-8% के बीच में लोगों का रिटर्न 3 से 7 साल की 10 साल के होल्डिंग पीरियड पे है। तो केवल चांस का बात है कि 3 साल पहले गोल्ड सोने का दाम एक ऐसे जगह स्तर पे था जहां से लोगों को 15% का सालाना रिटर्न मिल पाया है। इसलिए मेरी सलाह होगी कि अगर आपका लंबे समय का पैसा है, पैसा निकालिए और धीरे धीरे करके जो भी पैसा है उसको इक्विटी में लगाइए और 5 साल इंतजार कीजिए। मुझे लगता है आपको हमेशा सोने से बेहतर रिटर्न मिलेगा। मुंबई से रत्नाकर जी हमारे साथ, उनसे बात करने से पहले 2 अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। पिछले महीने भारतीय शेयर बाजार में शुद्ध निवेश करने के बाद विदेशी निवेशकों ने इस महीने के पहले 7 कारोबारी सत्रों के दौरान इन बाजारों से 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि बाहर निकाली। डिपॉजिटरी आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफसीआई ने जुलाई में अब तक भारतीय शेयर बाजारों से 2249 करोड़ रुपए बाहर निकाले हैं। हालांकि 1 जुलाई से 10 जुलाई की इस अवधि में उन्होंने ऋण बाजारों में 2088 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसके चलते आलोच्य अवधि में भारतीय पूंजी बाजारों से बाहर जाने वाला कुल शुद्ध प्रवाह 161 करोड़ रुपए रहा। इससे पहले अप्रैल और मई में शुद्ध बिकवाली करने के बाद जून में एफपीआई ने भारतीय बाजारों में 13,269 करोड़ रुपए का निवेश किया था। Moving on to the oil story, crude oil prices fell nearly 3% this week on worries that the collapse of talks between the OPEC countries and allies, including Russia, a group known as OPEC Plus, could lead to a rise in crude supplies. Brent crude oil futures ended the week at $74.03 a barrel on Friday, while U.S. crude settled at $72.95 a barrel. रत्नाकर जी, 1 मिनट का समय बचा है, जल्दी से अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैडम। जी गुड इवनिंग। मेरा सवाल है कि मंथली डिविडेंड के लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा? मंथली डिविडेंड के लिए किसी म्यूचुअल फंड उम्मीद से आप म्यूचुअल फंड में निवेश न करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड में डिविडेंड का कुछ खास मायने नहीं होता है। कई बार आपको डिविडेंड मिलता है और आपकी पूंजी कम हो जाएगी। अगर आप किसी फंड में आपने 1 लाख रुपए लगाया और आपको कोई 1% का रिटर्न मिला, लेकिन उसका दाम उतना ही कम होता है जितना आपको डिविडेंड मिलता है। आप देखिए कि कंजर्वेटिवली किस तरह, मेरी सलाह में आपको इस तरह के रिटर्न के लिए आपको एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में पैसा लगाना चाहिए और वहां से डिविडेंड के बजाय आप सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक निश्चित रकम की विड्रॉल की आप वहां पे आप एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं और कोशिश कीजिए कि वो आप रिटर्न इससे ज्यादा न लें, वो विड्रॉल आपका सालाना रिटर्न से ज्यादा ना हो ताकि आपकी पूंजी ना कम हो। कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। गौरव गाजियाबाद से हमारे साथ हैं। आई एम अफ्रेड गौरव जी आज समय नहीं है आपका प्रश्न कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर म्यूचुअल फंड से ही आपका जुड़ा प्रश्न है तो अगले संडे को फोन करिए। अगर आप कोई जनरल जानकारी भी चाहते हैं तो आप सैटरडे या मंडे को भी हमें फोन कर सकते हैं। धीरेन्द्र जी, आप आए, कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और सभी श्रोताओं का भी इतने उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूरे मार्केट मंत्र की टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। And before we close, a reminder of the headlines. Investors of 6 shuttered Franklin Templeton mutual fund schemes to get another 3,303 crore rupees next week. Foreign investors pull out over 2,000 crore rupees from the Indian equities market so far in the month of July. And global crude oil prices fall nearly 3% this week. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.